آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے انا یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد میں کی شرکت۔ کہا، نئی تعلیمی پالیسی سے طلباء کی صلاحیتوں میں ہوگا اضافہ۔ کل سے آزادی کا امرت مہوتسو پروگرام، وزیراعظم نریندر مودی گجرات میں تقریبات کا کریں گے افتتاح۔ حیدرآباد کے باغ عامہ میں ہونے والے پروگرام میں KCR کریں گے شرکت۔ تلنگانہ میں 75 ہفتوں تک آزادی کے امرت مہوتسو کی تقریبات کا ہوگا انعقاد۔ فیسٹیول مینجمنٹ کمیٹی کی چیف منسٹر کو رپورٹ۔ ریاست بھر میں مہا شیوراتری کا جوش و خروش کے ساتھ کیا جا رہا ہے انعقاد، مندروں میں خصوصی پوجا پاٹ۔ ریاست میں درجہ حرارت میں اضافہ، گرمی کی وجہ سے بڑھ گئی بجلی کی مانگ۔ کورونا کے تئیں عوام کو چوکس رہنا چاہیے، ماسک کا استعمال کریں، دوسروں سے بات کرتے وقت 6 فٹ کا فاصلہ اور اپنے ہاتھوں کو مسلسل دھونا چاہیے۔ طبی ماہرین کا مشورہ ہے کہ احتیاط سے ہی کورونا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے اپنے 3 روزہ تمل ناڈو کے دورے کے موقع پر آج چنئی میں واقع انا یونیورسٹی کے 41ویں کانووکیشن میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمل ناڈو کافی قدیم دور سے ہی علم و عمل کا مرکز رہا ہے اور یہاں انا یونیورسٹی کا قیام ایک بڑا اعزاز ہے۔ رام ناتھ کووند نے کہا کہ سابق صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام جیسے اہم شخصیتوں کے مادر تعلیم میں آ کر انہیں کافی مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے حال ہی میں لائی گئی نئی تعلیمی پالیسی 2020 ایک ایسی جدید تعلیمی پالیسی ہے جو عالمی ضروریات اور تحقیقی مہارتوں پر مبنی ہے۔ اس سے ہندوستانی زبانوں میں تحقیق کی صلاحیت کا موقع ملے گا۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور PhD سطح پر لاکھوں طلبہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان میں 45% خواتین شامل ہیں اور یہ بھی قابل مبارک ہے کہ گولڈ میڈل اور فرسٹ کلاس ڈگری حاصل کرنے والوں میں 60% سے زیادہ خواتین ہیں۔ Right for all Indians, as it symbolizes the rich cultural heritage of our country. The anthologies of poems from this literature have been universally appreciated by readers and scholars alike. With the antiquity of texts embodied in its ancient literature, it is not surprising that Tamil language has been accorded the status of classical language. Ladies and gentlemen, knowledge is wealth, and it is the best among all forms of wealth. As the famous saying elaborates, that it cannot be stolen by thieves, cannot be seized by kings, cannot be divided amongst brothers, and it is not heavy to carry either. The more it is spent, the more it flourishes. The wealth of knowledge is therefore the most important among all kinds of wealth. Knowledge is the foundation of آزادی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد کیے جا رہے آزادی کا امرت مہوتسو میں شرکت کرنے کی ارکان پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں سے اپیل کی۔ تقریباً 1 سال بعد منعقد ہوئے BJP کے پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس سے مودی نے خطاب کرتے ہوئے ارکان سے امرت مہوتسو کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس اجلاس کی تفصیلات کا انکشاف کرتے ہوئے مرکزی وزیر پارلیمانی امور پرہلاد جوشی نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی جمعے کو احمد آباد میں سابرمتی آشرم سے مہاتما گاندھی کے تاریخی دانڈی مارچ میں یاترا کو جھنڈی دکھا کر اس مہوتسو کا افتتاح کریں گے۔ ملک بھر کے 75 مقامات پر 75 ہفتوں تک اس ضمن میں خصوصی پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا۔ وزیراعظم مودی نے ارکان پارلیمنٹ کو مشورہ دیا کہ وہ ان پروگراموں کے دوران عوام کے بیچ جاتے ہوئے کووڈ ویکسینیشن میں تعاون کریں۔ تاریخی دانڈی مارچ کی یاد نکالی جانے والی یاترا 336 کلومیٹر کے اصل راستے سے پیدل چلتے ہوئے سابرمتی آشرم سے جنوبی گجرات کے سمندری ساحل پر دانڈی پہنچے گی۔ ساکار کرنے کی ذمہ داری ہم سب کو دی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ کمیٹی اپنے اس کرتویہ کے لیے کڑی محنت کے ساتھ جو آشا اپیکشائیں ہیں،
जो सुझाव आए हैं वो जो सुझाव आते रहेंगे, जन जन तक पहुंचने का जो प्रयास है उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। लगातार नए नए आइडियाज, नए नए सुझाव जन सामान्य को फिर से एक बार देश के लिए जीने के लिए आंदोलित करना। रियासती हुकूमत ने भी तेलंगाना में मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह तकारीब जोश खरोश के साथ वसी और फकीदुल मिसाल पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। अमृत महोत्सव का हैदराबाद में वाक़ बाग़-ए-आमा में कौमी परचम लहराकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इफ्तिताह करेंगे। उसी रोज़ वरंगल में भी एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा जिसमें रियासत की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन शिरकत करेंगी। हैदराबाद में कल मुनक्कद होने वाले प्रोग्रामों के लिए पब्लिक गार्डन के पास सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। रविंद्र भारती में हुकूमत के मुशीर के वी रमनाचारी की सदारत में एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर प्रोग्राम्स के इनेकाद का फैसला किया गया। 12 मार्च से आइंदा साल 15 अगस्त तक 75 हफ्तों तक अमृत महोत्सव के तहत प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। इन प्रोग्रामों के जरिए हुब्बुल वतनी के जज्बे को सरचार करने वाले सकाफती प्रोग्राम्स, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मुशायरे वगैरह मुनक्किद किए जाएंगे। इसके अलावा तलबा में तहरीरी, तकरीरी व मुसव्वरी के मुकाबलों का भी इनेकाद किया जाएगा। इस ज़िमन में एक रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को पेश करने की रमनाचारी ने बात कही है। तेलंगाना के रियासती वज़रा हरीश राव और इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत मंदिरों की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही है। इन दोनों वज़रा ने आज श्री ब्रह्मा रामभा मल्लिकार्जुन स्वामी के मंदिर में कानून साज कौंसिल के रुकन भोपाल रेड्डी की निजी फंड से तामीर किए गए मेहमान खाने का इफ्तिताह किया। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर मंदिरों की तरक्की के लिए संजीदा इकदाम कर रहे हैं, जबकि इंडोमेंट के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के तज़े-ए-नौ की काम जिसकी बेहतरीन मिसाल है। इस मंदिर को आलमी दर्जे की शनाख्त फराहम करने के लिए हुकूमत करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर साल इम्तिहानात के मौके पर तलबा से बातचीत का खुसूसी प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा मुनक्कद करते हैं। इस प्रोग्राम का ये 4था एडिशन है जो इस माह मुनक्कद किया जाने वाला है। इस बार वज़ीर-ए-आज़म का ये मखसूस प्रोग्राम वर्चुअल तरीक़ेकार पर मुनक्कद किया जा रहा है। वज़ारत तालीम ने इस बात का इंकशाफ किया है। इम्तिहानात के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म 9वीं से 12वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा के हौसले बुलंद और उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए साल 2018 से इस प्रोग्राम का इनेकाद करते आ रहे हैं। इस बार ये प्रोग्राम कोविड-19 के क़वायद की वजह से वर्चुअल ही मुनक्कद किया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तलबा से बात करते हुए तलबा में इम्तिहानात के तय पाए जाने वाले तनाव को दूर करने के साथ साथ इनके हौसलों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में अपने नामों का इंदराज 14 मार्च तक करवा सकते हैं। अब तक तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा तलबा ने इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ नेहरू मेमोरियल हाई स्कूल की टीचर पद्मा प्रिया ने तलबा को परीक्षा पे चर्चा के बारे में जानकारी देते हुए शऊर बेदार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों लीडरों ने 2019 में कायम की गई बाहमी कलीदी साझेदारी कौंसिल की कारकर्दगी का जायजा लिया और हिंदुस्तान सऊदी अरब साझेदारी में तेजी से इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद देखी जा रही है। कुंभ मेले और शिवरात्रि के मुकद्दस मौके पर श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद चार धाम के दर्शन के लिए पहुंची है। हर की फौरी घाट से ही श्रद्धालुओं की कसीर तादाद मौजूद है। सुबह 7 बजे नागा साधुओं ने पवित्र स्नान किया। नागा साधुओं के स्नान के बाद अहम श्रद्धालुओं को डुबकी लगाने की इजाज़त दी गई। कुंभ मेले के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खुसूसी जोन कायम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सहूलत की खातिर जगह जगह हेल्थ कैंप्स लगाए गए हैं। कोरोना के पेश नज़र घाट पर सफाई का खुसूसी इंतजाम किया गया है। महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए शिवरात्रि की शुभकामनाएं पेश की। सदर जमहूरिया ने अपने ट्वीट में कहा कि यह त्यौहार सारी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तेलंगाना में वाक़े वेमुलवाड़ा को जुनूबी हिंद का काशी तस्वुर किया जाता है। यहाँ शिवरात्रि का इनेकाद बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।
बड़ी तादाद में श्रद्धालु राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। रियासत के वजीर इंडोमेंट किंद्रा किरण रेड्डी ने अपनी अहलिया और रियासती मनसूबाबंदी के नायब सदर बी विनोद के हमरा मंदिर में रेशमी उल्बसात का नजराना पेश किया। हुकूमत की जानिब से पेश करदा नजराने का मंदिर के पुजारियों ने खुसूसी पूजा पाठ करते हुए हासिल किया। इस मौके पर रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत श्रद्धालुओं की सहूलत की खातिर मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने रियासती अवाम को शिवरात्रि की शुभकामनाएं पेश की। टीटीडी के ज़ेर-ए-एहतमाम टीटीडी के चेयरमैन वाई सुब्बा रेड्डी ने अपनी अहलिया के हमरा रेशमी मुल्बसात पेश करते हुए खुसूसी पूजा की। आज रजबुल मुरज्जब की 26 तारीख है। आज रात मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर हैदराबाद शहर के बशमूल तेलंगाना रियासत में खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है। शब मेराज के मौके पर मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को पेश किया जाता है। इस ज़िमन में शहर और अजला के बेशतर मसाजिद में खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया जाता है। नमाज इशा के बाद उलमाए दीन के खिताबात का अहतमाम किया जाता है। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अन्ना यूनिवर्सिटी के जलसे तक़सीम असनाद में की शिरकत। कहा, नई तालीमी पॉलिसी से तलबा की सलाहियतों में होगा इजाफा। कल से आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात में तकरीबात का करेंगे इफ्तिताह। हैदराबाद के बाग-ए-आमा में होने वाले प्रोग्राम में केसीआर करेंगे शिरकत। तेलंगाना में 75 हफ्तों तक आज़ादी के अमृत महोत्सव की तकरीबात का होगा इनेकाद। फेस्टिवल मैनेजमेंट कमेटी की चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट। रियासत भर में महाशिवरात्रि का जोशो खरोश के साथ किया जा रहा है इनेकाद। मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ। रियासत में दर्जे हरारत में इजाफा। गर्मी की वजह से बढ़ गई बिजली की मांग।